सेमीकंडक्टर से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं उनमें एक है फॉरबिडन गैप की डेफिनेशन। एनर्जी रेंज बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड विच इज़ नॉट अलाउड बाय इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्यूपाई दैट एनर्जी रेंज इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप and for semiconductor this forbidden gap is 1 electron volt. Then conduction band and valence band are also important definitions, but I am not reading it out for you. You can pause the video and can go through the definitions. Second question which I am expecting a lot is this one. Difference between conductor, semiconductor and insulator on the basis of band theory. I am expecting it a lot. Understand it. This rectangle is representing valence band. Leave small gap and then make another rectangle which will represent conduction band. This gap will represent energy gap. So now conductor, insulator and semiconductor, all three are having this band diagram, energy band diagram, but they have different energy band diagram and accordingly their nature is different. So what is the energy band diagram for insulator? See, materials, all those materials in which conduction band is empty, valence band is filled, and these are separated with large energy gap are called insulators. Then, and what is the large gap? Large gap means energy gap is more than 3 electron volt. For semiconductor, those materials in which conduction band is completely empty at 0 Kelvin and valence band is completely filled. That means at 0 Kelvin, semiconductor acts like a insulator. Valence band is completely filled and these are separated with small energy gap. Small energy gap means less than 3 electron volt, but actually semiconductor has this energy gap equal to 1 electron volt. So such type of material which act as insulator as 0 Kelvin but at room temperature, since their conduction band and valence band are separated by small energy gap, therefore this valence band electron can easily jump to conduction band, can become free, and conduction property is shown by the semiconductor as temperature increases. So this is the band diagram of semiconductor. So this energy gap is differentiating between two materials and you have to write difference accordingly. You don't have to write those materials which do not allow current to flow. Those are insulator. No, you have to differentiate the materials according to the band theory. Then for conductor, those materials in which conduction band overlaps valence band and valence electrons can easily move from one gap to other. That means electrons can easily leave their atom and can become free, are conductors. So question can be asked that in which material there is no energy gap. So conductor does not have any energy gap, conduction band overlaps valence band. So this is very much very important question, and for the preparation of this question you need to draw these diagrams once or twice without looking at the answer. And then doping definition I'm expecting a lot. Controlled mixing of trivalent or pentavalent impurity atoms to increase conductivity of semiconductor material is called doping. Intrinsic and extrinsic semiconductor, pure semiconductor intrinsic semiconductor है, इसमें number of holes और number of electrons equal होते हैं. Semiconductor with trivalent or pentavalent impurity to increase its conductivity are called extrinsic semiconductor. इसके बाद होल की डेफिनेशन. कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं रूम टेम्परेचर पर और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने बॉन्ड को छोड़कर फ्री हो जाते हैं, तो वैकेंसी ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड इज कॉल्ड होल, और होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है. इसके बाद मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर. बेटा आंसर मैंने इसलिए लिखे हैं जिससे तुम्हें पता रहे कि तुमको कैसे लिखना है आंसर. तो आप वीडियो पॉज करके आंसर कैसे लिखा गया है वो भी देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले. कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू टू चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज ड्यू टू होल्स. When temperature increases, more covalent bond break and number of electron and holes increase. Therefore, resistance of the semiconductor decreases when temperature increases and conduction increases. Then N-type semiconductor and P-type semiconductor. पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जिनमें मिलाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाते हैं, और ऐसे जो सेमीकंडक्टर हैं उन्हें निगेटिव टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के जो नाम है वो भी आप ज़रूर लर्न कर लें.
और पी टाइप सेमीकंडक्टर जिनमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हम मिक्स करते हैं. सो होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स and that is why they are called positive type semiconductor because conduction is taking place because of the positively charged carriers or holes. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. बहुत सालों के बाद, कोरोना के बाद जेनर डायोड सिलेबस में आया है, तो बच्चों मैं जेनर डायोड बहुत एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस बार. Zener diode is a heavily doped semiconductor diode which works in reverse breakdown region. Its symbol is like this, arrow और साथ में Z. इसके अलावा जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है और आपसे यही पूछा जाता है कि कैसे. तो जेनर डायोड का जो VI कैरेक्टरिस्टिक है, जो फॉरवर्ड बाइसिंग का कैरेक्टरिस्टिक है, वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन क्योंकि ये हेवीली डोप्ड होता है, इसकी डिप्लीशन रीजन बहुत थिन होती है, तो जैसे ही इसमें रिवर्स बाइसिंग करी जाती है, बहुत थोड़ा सा रिवर्स वोल्टेज लगाते ही ये ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है. ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है कि देखो, वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज, नी वोल्टेज या जेनर वोल्टेज पर देखो करंट बढ़ रही है लेकिन वोल्टेज लगातार कांस्टेंट बना हुआ है. यही खासियत है कि आप करंट को इसके थ्रू ज़्यादा फ्लो करा दीजिए या कम कर दीजिए, वोल्टेज इसके अक्रॉस कांस्टेंट हो जाता है, जिसे हम जेनर या ब्रेकडाउन वोल्टेज या नी वोल्टेज बोलते हैं. तो जेनर डायोड सिंस इट इज़ हेवीली डोप्ड एंड हैज़ थिन डिप्लेशन रीजन, सो व्हेन स्मॉल रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड. अब ये ऐसे आपको लिखना है आंसर. So you can pause video and you can go through or you can go to my Telegram channel. तो जैसे ही थोड़ा सा small reverse voltage is applied and applied voltage is greater than knee voltage, voltage across Zener diode becomes constant, equal to breakdown voltage for a wide range of currents. So when this diode is connected in parallel to load, diode is connected in parallel to load. ये circuit diagram आपको पता होना चाहिए. तो ये लोड है, फैन, टीवी सभी कुछ, और इसके पैरेलल में ये जेनर डायोड लगा हुआ है. एक रेजिस्टेंस रखते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए, जिससे डायोड जल ना जाए, और ये इनपुट वोल्टेज है. अगर इनपुट वोल्टेज किसी वजह से बढ़ता है या घटता है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन ये वोल्टेज VZ यानी जेनर वोल्टेज बना रहेगा. और इसके साथ अगर फ्रिज अटैच्ड है, टीवी अटैच्ड है, तो पैरेलल में इसके साथ जो भी अप्लायंस है उसके क्रॉस वोल्टेज VZ बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. यही है वोल्टेज रेगुलेशन, कि वो इनपुट वोल्टेज के चेंज का असर अप्लायंस पर नहीं होने देता. अब जब ये वोल्टेज बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर आ जाता है, पर इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप चेंज नहीं होता है. लेकिन इसके वोल्टेज के बढ़ने से जो करंट बढ़ती है वो IZ इसके थ्रू बढ़ जाती है. और आपको पता है कि अगर करंट बढ़ भी जाए तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है. तो बढ़ी हुई करंट अप्लायंस के अक्रॉस ना तो करंट को बढ़ने देती है, ना वोल्टेज के डिफरेंस को, बल्कि ये ही अपने अंदर इस करंट को फ्लो करा लेता है और इसके अक्रॉस वोल्टेज को रेगुलेट किए रहता है. तो आप आराम से पॉज करके ये पढ़ सकते हैं या PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर पढ़ सकते हैं. इसके बाद LED भी मुझे बहुत एक्सपेक्टेड है. LED कई बार पूछा गया है लेकिन 24 में नहीं पूछा गया है. LED is also heavily doped PN junction which works when it is forward biased. When diode is forward biased, इलेक्ट्रॉन क्रॉस द जंक्शन, और जब क्रॉस कर रहे होते हैं दे रिकम्बाइन विद होल्स. जब वो रिकम्बाइन करते हैं होल्स से तो उस समय वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं. लेकिन नॉर्मल डायोड में वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, पर LED में जो मटेरियल है वो ऐसा लिया जाता है कि ये एनर्जी रिकॉम्बिनेशन के समय लाइट के फॉर्म में एमिट होती है, और इसीलिए इसको लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं. किस तरह की लाइट एमिट होगी दैट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ सेमीकंडक्टर एंड द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन. फिर पूछते हैं इसका एडवांटेज क्या है. तो बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करता है. जो एमिटेड लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, मतलब रेड, तो मतलब सिर्फ रेड आपको मिलेगी, और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है. इसके अलावा बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जंक्शन डायोड रेक्टिफायर की तरह कैसे एक्ट करता है, या रेक्टिफायर क्या है. तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच ब्लॉक्स 1/2 साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड कन्वर्ट्स AC into DC. और कैसे करता है ये. एन आइडियल डायोड ऑफर 0 रेजिस्टेंस व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड. प्रैक्टिकल डायोड बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है जब रिवर्स बायस होता है, और बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है जब वो फॉरवर्ड बायस होता है. और इस तरह से वो AC के एक हाफ साइकिल को ओमिट कर देता है और AC को DC में बदल देता है. तो हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाने को आता है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का वेव बनाने को आता है. तो वो मैं आपको बना के दिखाई दे रही हूँ. आपको एक इनपुट सर्किट ड्रॉ करना है, क्योंकि जो आप सर्किट में डायोड को पोटेंशियल AC अप्लाई करेंगे ना, वो एक
ट्रांसफार्मर के थ्रू करते हैं इस तरह से। तो आप एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बनाएंगे और उसमें एसी को अप्लाई दिखा देंगे। ये लैमिनेटेड कोर जो ट्रांसफार्मर का होता है उसके लिए 2 लाइंस दिखाएंगे। फिर आप इसकी जो सेकेंडरी है वो बनाएंगे इस तरह से, और एक साइड में डायोड कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और ध्यान से देखो, इसके दोनों एंड ट्रांसफार्मर के, एक डायोड के थ्रू और दूसरा सीधे, ये आप ले जाकर, मतलब यहाँ से इधर ले गए, यहाँ से इधर लाए, और ये आप कनेक्ट कर देंगे ट्रांसफार्मर के सेंटर से। इसे कहते हैं सेंटर टैपिंग। और सेंटर को आप 0 वोल्ट पर अर्थ कर देंगे, और यहाँ बीच में आप लगा देंगे एक रेजिस्टेंस इस तरह से। यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस दिखाएंगे जो कि हमारा लोड हो जाएगा, जिसमें कि वो वोल्टेज जाना है। तो जब इनपुट वोल्टेज में पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा इस तरह से, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा ये वाला, उस समय ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इसके थ्रू करंट फ्लो करेगी और इस लोड को करंट मिलेगी। लेकिन जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और ये करंट को ब्लॉक कर देगा और इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। एक्स वाई एक्सेस बनाएंगे और उसके बाद आप सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल दिखाएंगे, निगेटिव हाफ साइकिल को आप गायब कर देंगे इस तरह से। निगेटिव हाफ साइकिल जो है वो नहीं फ्लो करेगा, तो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट का डायरेक्शन चेंज होता था वो अब नहीं हो रहा है। करंट फ्लक्चुएट तो कर रही है, वैल्यू चेंज कर रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन एक ही बनी हुई है, सेम। ठीक, ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। कैसे डायग्राम बनाएंगे, इनपुट वेव फॉर्म और आउटपुट वेव फॉर्म। और अब फुल वेव रेक्टिफायर, ये भी मैं जल्दी से ड्रॉ करके बता दूं। सबसे पहले आप प्राइमरी बनाएंगे और उसमें एसी अप्लाई करेंगे, इनपुट। इसके बाद जैसे पहले दिखाया था, लैमिनेटेड कोर के लिए ये 2 लाइंस खींचेंगे और फिर सेकेंडरी ड्रॉ करेंगे। अब आप ऊपर और नीचे दोनों ब्रांचेस में डायोड लगा देंगे, D1 और D2। और इसके बाद आप इनको बिल्कुल वैसे ही सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देंगे। ये पहले मैंने ये कनेक्ट किया और इसके बाद ट्रांसफार्मर के सेंटर से एक लोड को इस तरह से बीच में कनेक्ट कर दिया, और जो सेंटर पॉइंट है इसको 0 वोल्ट कर दिया। ये हमारा लोड हो गया। अब क्या होगा, इनपुट एसी में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो D1 कंडक्ट करेगा, क्योंकि D1 फॉरवर्ड बायस्ड होगा। और जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो D2 कंडक्ट करेगा, क्योंकि D2 फॉरवर्ड बायस्ड होगा। जब D1 फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो D2 रिवर्स होगा, जब D2 फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो D1 रिवर्स होगा। जब D1 फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो करंट इस तरह से फ्लो करेगी, और जब D2 तो करंट इस तरह से फ्लो करेगी। और आप देखिए कि दोनों ही एरो लोड में, अप्लायंस में सेम डायरेक्शन में है। मतलब ये जो करंट का ऑल्टरनेट डायरेक्शन चेंज था वो चेंज हो चुका है और ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में बदल चुकी है। यहाँ पर आप जो इनपुट का आउटपुट दिखाएंगे इस तरीके से एक्स वाई एक्सेस ड्रॉ करेंगे। और अब आप जो निगेटिव हाफ साइकिल है उसे भी आप ऊपर की ओर ही दिखाएंगे, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है, फ्लक्चुएटिंग डीसी है, पर डीसी डायरेक्ट करंट यानी सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। और जैसे मैंने बोला वो आप वर्किंग अगर पूछी जाती तो लिख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे आज रात तक अपलोड कर दूंगी। आप वो पीडीएफ भी उसके थ्रू भी आप अपनी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये, और इसके अलावा एक न्यूमेरिकल एक बार आया था, तो वैसा न्यूमेरिकल भी फॉर अ चेंज आपको पेपर में मिल सकता है। तो वो जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, आपको एक ग्राफ गिवन है और उन्होंने पूछा है कि जब V 0.5 वोल्ट है तब रेजिस्टेंस क्या है, और जब I 60 मिली एम्पियर है तब रेजिस्टेंस क्या है। बच्चों ध्यान देना, जो ग्राफ उन्होंने दिया था उसमें एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस था और वाई एक्सिस पे करंट था। तो जब आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो आप V अपॉन I करते हैं। तो बस हड़बड़ी में I अपॉन V नहीं कर जाना, उसको बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। 0.5 वोल्ट पर करंट की वैल्यू है 40, तो 0.5 अपॉन 40 मिली एम्पियर है। तो 40 को पहले आपने एम्पियर में चेंज किया और सॉल्व करेंगे तो 12.5 ओम 0.5 वोल्ट पे रेजिस्टेंस आ जाएगा। और जब आप 60 मिली एम्पियर पे रेजिस्टेंस निकालेंगे तो फिर से आप 0.6 वोल्ट उसके कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज है, 0.6 अपॉन 60 मिली एम्पियर
एम्पियर में चेंज करेंगे करंट को और रेजिस्टेंस निकाल देंगे। आई होप कि आपको सेमीकंडक्टर में इनमें से क्वेश्चंस मिलते हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा जाता है। इसके अलावा मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्टरनेटिंग करंट और मैग्नेटिज्म से इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है और यहाँ पर भी मैं उससे, लेकिन न्यूमेरिकल्स इतने सारे, करीब 25 न्यूमेरिकल्स हैं और अगर मैं गेस करूँ तो आपको उससे 12 मार्क्स तक क्वेश्चन मिल सकते हैं। न्यूमेरिकल्स एग्जैक्टली रिपीट नहीं होते, लेकिन उसी प्रिंसिपल पर उसी तरह के न्यूमेरिकल्स आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। तो नेक्स्ट मैं वो न्यूमेरिकल्स ही अपलोड करने वाली हूँ। आप न्यूमेरिकल्स वीडियो पॉज कर करके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जाकर PDF देख सकते हैं।